خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ بھی کتنے خوبصورت دن تھے جب ہم اپنے والدین کے زیر سایہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہا کرتے تھے۔ ہمارا گھر ہمارے والدین کے پیار سے بھرا ہوا ایک خوبصورت آشیانہ تھا، جس میں ہم پانچوں بچے چہکتے رہتے تھے۔ اللہ کے فضل سے زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ پھر وقت نے کروٹ لی۔ ایک روز موت کا فرشتہ دبے پاؤں اندر آیا اور میرے والد محترم کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم آہو بکا ہی کرتے رہ گئے۔ ان کی رحلت والدہ کے لیے ایک سانحہ تھی۔ ان کی غیر موجودگی نے ہم سب سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ وقت رکتا نہیں، گزرتا گیا۔ ہم تینوں بہنوں نے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی۔ بڑے بھائی نے انجینئرنگ پاس کی تو کچھ حالات کی بہتری کی امید پیدا ہوئی۔ چھوٹا بھائی ابھی کالج جا رہا تھا کہ بڑی آپا کا رشتہ ایک خوشحال گھرانے سے آ گیا۔ وہ ہمارے حالات اور اماں جان کی شرافت سے واقف تھے۔ انہوں نے جہیز طلب نہ کیا۔ سادگی سے آپا کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر گجرانوالہ چلی گئیں۔ اب دوسری بہن کی باری تھی۔ بڑی بہن کی کوششوں سے انہی کے سسرالیوں میں ان کا بھی رشتہ پکا ہو گیا۔ انہی دنوں بڑے بھائی کی ملازمت ہو گئی تو رخسانہ آپا بھی بیاہ کر گجرانوالہ چلی گئی۔ گھر میں صرف میں رہ گئی تھی۔ مالی حالات کچھ سنبھل گئے۔ چھوٹے بھائی نے بھی تعلیم مکمل کر لی اور ایک کمپنی میں ملازم ہو گئے۔ مجھے کالج میں داخل کروا دیا کیونکہ مجھے آگے پڑھنے کا شوق تھا۔ بڑی بہنوں کو اسکول تک ہی تعلیم نصیب ہوئی تھی، لیکن میں خوش قسمت نکلی اور میرا یہ خواب تعبیر پانے لگا۔ ان دنوں میں سیکنڈ ایئر میں تھی۔ کالج کی ایک سہیلی نے اپنے گھر سالگرہ پر مدعو کیا۔ اماں کو بتایا۔ انہوں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم بہن کو اس کی سہیلی کے گھر چھوڑ آنا۔ بھائی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پہلے بازار گئی۔ عائشہ کے لیے ایک خوبصورت سا پرس تحفے کے طور پر خریدا اور پھر بھیا نے مجھے اس کے گھر چھوڑ دیا، جو ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ سالگرہ کی تقریب کے دوران عائشہ کے بھائی نے مجھے دیکھا۔ میں اس کو اچھی لگی۔ اگلے دن جب کالج گئی تو عائشہ نے بتایا کہ اس کا بھائی مجھ پر مر مٹا ہے۔ کہتا ہے شادی کروں گا تو تمہاری سہیلی ہرا سے، ورنہ عمر بھر شادی نہ کروں گا۔ غرض عائشہ نے اس طرح کی باتیں کی کہ میرا دل بھی اپنے بھائی کی طرف مائل کر ہی لیا۔ ویسے بھی وہ کچھ عمر بھی ایسی ہوتی ہے۔ میں نے بھی اپنے خیالوں میں اس نوجوان کا تصور سجا لیا۔ بہانے بہانے کالج سے عائشہ کے گھر چلی جاتی اور اس کے بھائی اسلم سے پیار اور محبت کے وعدے کرتی۔ ہم نے ساتھ اور شادی کی قسمیں کھا لی۔ سوچتی تھی بی اے کرنے کے بعد اماں کو بتاؤں گی اور اسلم کی والدہ رشتہ لے کر آ جائیں گی، پھر ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ جانتی نہ تھی جس کام کو میں اس قدر آسان سمجھ رہی ہوں وہ اتنا بھی آسان نہیں۔ شادی جہاں تقدیر میں ہو وہاں ہی ہوتی ہے۔ میرے اور اسلم کے سوچنے سے بھلا کیا ہوتا تھا۔ انہیں دنوں آپا کا اماں کو فون آ گیا۔ ہمارے جاننے والے نے ایک بہت اچھا رشتہ بتایا تھا۔ لڑکی والوں کا گھر لاہور میں ہے، آپ ان کو دیکھ لیں تو میں ہیرا کی بات آگے چلاؤں۔ آپا نے اماں کو کہا۔ انہوں نے اماں کو پتہ بھی لکھوا دیا اور فون نمبر بھی۔ اماں نے بڑے بھائی سے صلاح مشورہ کیا۔ دونوں لڑکے والوں کے گھر گئے۔ وہ لوگ کافی امیر تھے۔ لڑکا خوش شکل اور پڑھا لکھا تھا۔ بڑا سا گھر تھا۔ غرض ہر لحاظ سے رشتہ قابل قبول لگا۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھا تو فوراً پسند کر لیا۔ میں خوش عقل تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ اماں نے میرا رشتہ رفیق سے طے کر دیا۔ مجھے پتا چلا تو جی دھک سے رہ گیا۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ زندگی برباد اور دنیا لٹی پھٹی نظر آنے لگی۔ اماں جان سے کہا کہ میں وہاں شادی نہیں کروں گی جہاں آپ ہاں کر آئی ہیں۔ میں شادی اپنی مرضی اور پسند سے کروں گی۔ میں نے عائشہ کے بھائی کے بارے میں بتا دیا کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ اماں نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ بولیا خدایا کیا اسی دن کے لیے تمہیں پڑھایا لکھایا اور تمہیں کالج جانے کا خواب پورا کرنے دیا تھا۔ تمہیں سہیلیوں کے گھر آنے جانے کی آزادی ملی تو تم نے اپنی سی کر دکھائی۔ کیا باولی ہو گئی ہو؟ جب تمہارے بھائیوں کو تمہارے عشق کی کہانی پتہ چلے گی تو وہ تمہیں کیا کہیں گے؟ کیا ابھی تم میں اتنی عقل ہے کہ اپنے لیے خود جیون ساتھی منتخب کر لو؟ ارے بے وقوف نادان، جو رشتہ ہم نے منتخب کیا ہے قسمت والی لڑکیوں کو ایسا نصیب ہوتا ہے۔ ماں نے لاکھ سمجھایا پر میری عقل میں نہ آیا۔
चोरी छुपे कॉलेज से बहाना करके आयशा के घर गई। इसके भाई से मिली, असलम के सामने रोई धोई, उसको तमाम हालात से आगाह किया। मैंने इसरार किया कि अब अपनी अम्मा को भेज दो ताकि मैं इस रिश्ते पर उड़ जाऊं। असलम ने कहा कि दौरान तालीम वो कैसे रिश्ता मांगने भेज सकता है, पहले 2 बड़े भाई और 1 बहन मौजूद है। उसने मुझे यही कहा कि मुझे सब्र करना होगा। मैं सब्र तो उम्र भर कर लेती, लेकिन मेरे बस में होता तो। अम्मा और बड़े भाई 1 माह में मुझे ब्याहने की तैयारी कर रहे थे। लड़के वालों का तकाजा था कि जल्द शादी करनी है, शादी के बाद आपकी बेटी जितना चाहे पढ़ ले, हम नहीं रोकेंगे। इधर आपा और बड़े भाई के रोज अम्मा जान को फोन आते कि शादी में बिल्कुल देर ना करना, ये रिश्ता हरगिज ना गिनवाना, उनके लिए लड़कियां बहुत है। उन्हें मेरे मियाँ ने बड़े जतन से आमादा किया है। किस्सा मुख्तसर के जो कोशिश असलम और मुझसे हो सकी वो हमने कर ली। अपनी शादी में रोक नहीं सकती थी और असलम रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को फौरन हमारे घर भेजने की पोजीशन में न था। मुकर्ररा तारीख पर मुझे दुल्हन बना दिया गया। बारात आई और मैं बया कर रफीक के घर चली आई। दुल्हन बनकर हर लड़की नई जिंदगी के ख्वाब दामन में भरे पिया के आंगन में उतरती है, लेकिन मेरे दामन में तो असलम से वाबस्तगी के ख्वाब बंधे थे। जहन में इसी का तसव्वुर था। जिस्म किसी की मलकियत और मेरा दिल किसी और की मलकियत हो चुका था। मुझे लगा कि ये शादी नहीं है, जब्र है, एक ऐसा रिश्ता जिसको दूसरों की खुशी की खातिर मजबूरन कबूल करना पड़ा। इन एहसासात की कांटों भरी चुभन के साथ मैंने नई जिंदगी के सफर में पहले दिन का आगाज आंसुओं से लबरेज आंखों से किया था। अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो रफीक जैसा शौहर पाकर खुशी से फूले ना समाती। इनमें कोई कमी ना थी और ना इस घर में किसी शय की कमी थी, लेकिन जो फितूर था वो मेरे अपने जहन में था और जो मर्ज था मेरे अपने दिल में था। वक्त गुजरने लगा, रफीक ने मुझे हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश की, मगर मैंने जले हुए दिल से नई जिंदगी का सफर शुरू किया था। आखिर तक रोते बेसूरते ही दिन रात गुजारे जाती थी। वो मुझे खूबसूरत मकामात पर हनीमून के लिए ले गए, बाद में सैर व तफरी भी कराते रहे, मुझ पर खूब पैसा खर्च करते थे। मुझे खुश देखने के लिए इनके साथ साथ सास ससुर देवर नंद सब ने तमाम जतन कर लिए। दिल की कुल्ली खिली और ना मैंने किसी से हंस कर बात की। मैं इनके घर में पहली भाभी थी, शायद इसलिए उनको मेरे चाव भी ज्यादा थे। वो सब लोग मेरे लबों पर हंसी देखने को तरसते रह गए। बिलाखिर 6 महीने बाद मेरे शौहर इस नतीजे पर पहुंच गए कि मैं उनके साथ खुश नहीं हूं और नामालूम वजूह की बना पर साथ रहने पर मजबूर हूं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरे नाज नखरे उठाने छोड़ दिए और मुझे यहां तक कह दिया कि अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक लेकर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हो। मैं एहसन तरीके से तुम्हें अलविदा करने को तैयार हूं और मुझे कोई गिला शको ना होगा। कहीं और जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो तो भी जितनी रकम दरकार होगी तुम्हें दे दूंगा। मैं इनकी अजमत और बड़ेपन की कायल हो गई, लेकिन दिल नादान मानता ना था। रफीक का कोई कसूर न था। कभी कभी मुझे उन पर तरस भी आता था, लेकिन मैं अपने दिल से मजबूर थी। अब भी असलम से राबता था, अगरचे मुलाकात न होती थी, लेकिन वो यही कहता था कि अगर तुम शौहर का घर छोड़कर आ जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं, इसके लिए तुम्हें मुनासिब वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि मैं बरसर रोजगार होकर अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं। यही एक आस थी जिसने मुझे सीधी राह से भटका रखा था। असलम के वादे पर मैंने मैके में रहने की ठान ली। एक दिन मैंने रफीक से खामखा झगड़ा करके ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मेरे शौहर ने कहा कि बेहतर यही है कि अब तुम यहां से चली जाओ और जहां मर्जी जाकर रहो। जब से तुम आई हो हमारा घर छोड़ती हो और न ही इस घर को अपना बनाती हो। ना जाने तुम क्या चाहती हो, मगर तुम्हारे इस रवैये ने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है, हमें जीते जी मार डाला है। मैंने इस मौका को अच्छा जाना, अपने मैके वालों को इत्तिला ना की, चुपके से शौहर के घर से निकलकर आयशा के घर चली गई। सोचा अम्मा और भाइयों को इत्तिला की तो वो फिर मुझे शौहर के घर पहुंचा देंगे। असलम ने मुझे अपने घर पाया तो परेशान हो गया, और जब मैंने इसको बताया कि हमेशा के लिए रफीक का घर छोड़ आई हूं और तुम्हारी खातिर अब कभी वहां लूट कर ना जाऊंगी, तो वो मजीद परेशान हो गया। कहने लगा कि इससे कबल के मेरे अम्मा अबू को शक हो जाए कि तुम मेरी वजह से अपने शौहर के घर से निकली हो, तुम अपनी किसी बहन या फिर अपनी अम्मा के घर चली जाओ।
जब हालात सही होंगे मैं तुम्हें अपना लूंगा। अभी मेरे घर वालों पर बात खुल गई तो वो तुम्हें और मुझे कभी एक ना होने देंगे। इसके समझाने पर मैं आयशा से मिलने का बहाना करके कुछ देर वहां रुकी। लाचार अम्मा के घर आ गई। उनको बताया कि ससुराल वाले मुझ पर इस कदर जुल्म ढाते हैं कि अब मैं वहां नहीं रह सकती, रहूंगी तो मर जाऊंगी। माँ ही होती है। उन्होंने मेरे झूठे बयानात पर यकीन कर लिया। भाइयों को भी समझाया कि इसको कुछ ना कहो, यहीं रहने दो, कुछ अरसे बाद देखेंगे कि क्या होता है। उन्हीं दिनों बड़े भाई की शादी की तैयारियां होने लगी। रिश्ता तय था। 1 माह बाद शादी हो गई और भाभी घर आ गई। अम्मा के कहने पर भाइयों ने मेरे ससुराल में शादी का दावतनामा इरसाल किया, लेकिन वो शादी में शरीक ना हुए। भाई की शादी के थोड़े दिनों बाद रज़ाए इलाही से वालिदा बीमार पड़ गईं और उनको फालिज हो गया। माँ की फालिज में उनकी खिदमत के बहाने ठहरी रही। बिलाखिर आनन फानन 2 महीने के अंदर उनकी भी वफात हो गई। अब मेरी शादी को तकरीबन 10 माह गुजर चुके थे। अम्मा के इंतकाल के बाद भाई और भाभी ने आंखें फेर लें। उठते बैठते ताने देते कि शौहर का घर छोड़कर कब तक यहाँ पड़ी रहूगी, तुमने तो मुस्तकिल डेरे ही डाल लिए हैं। रोज बारोज उनका रवैया तौहीन आमेज होता गया। मैं ही नहीं, मेरी भाभी तो छोटे देवर को भी बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी। लेकिन वो बरसर रोजगार था, इसके वालिद का घर था, उसने वहां रहना ही था। ताहम वो जल्द ही भाभी के रवैये से नाला होकर दुबई चला गया। यूं मैं अपने बड़े भाई और भाभी के साथ घर में अकेली रह गई। छोटे भाई के जाते ही भाभी ने मेरे लिए घर को जहन्नम बना दिया। शायद इसको मेरा वजूद बोझ महसूस होता था। इस दौरान सास ने चंद बार फोन करके समझाना चाहा कि अब भी कुछ नहीं गया, लूट आओ, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं असलम के बाइख्तियार होने तक उसका इंतजार कर रही थी। सास को साफ अल्फाज में कह दिया कि मुझे तलाक चाहिए। सास ने धीमे लहजे में जवाब दिया, बेटी सोच लो, अब भी वक्त है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, अपने शौहर के घर के सवा तुमको किसी और जगह पनाह नहीं मिलेगी। एक दिन जबकि बड़ा भाई घर में न था, भाभी ने खूब बुरा भला कहकर घर से चले जाने का हुक्म दे दिया। बोली, अपने शौहर के घर जाओ वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। ना जाने किसके वादे पूरे करने के लिए अपना घर बर्बाद करके बैठ गई हो। मैं तुम्हारे तेवर समझती हूं, रहना है तो अपनी बहनों के घर जा। इतनी इहानत में सह ना सकी, बैग तैयार किया और गुजरावाला की बस में बैठ गई। असलम ने कहा था, बस 1 साल और इंतजार कर लो, फिर मैं तुम्हें अपनाने के काबिल हो जाऊंगा। ये 1 साल कहीं मुझे गुजारना था। मेरी शादी के बाद 1 साल तो गुजर ही चुका था। माँ के बाद बहन का घर ही सबसे करीबी रिश्ता था। सोचा ये ऐसा रिश्ता है कि मुसीबत की इस घड़ी में वहां जरूर सहारा मिलेगा। दिल में उम्मीद का दिया जलाकर बड़ी बहन के घर पहुंची। बहन जानती थी कि मैं शौहर से रूठ कर मैके में पड़ी हूं। दिलजुई की बजाय बोली कि खैरियत है, तुम यहां आ गई हो। यहां तक कि खाने को भी ना पूछा। कहने लगी, मंझली का घर पहले आता है, वहां क्यों नहीं गई। साफ जाहिर था आपा चाहती थी कि मैं उनके यहां डेरा ना डालूं, बल्कि डालने से पहले ही छुट्टी के घर चली जाऊं। दोनों के शौहर आपस में कजिन थे और उनके घर भी ज्यादा दूर न थे। कहने लगी, कुछ प्रॉब्लम में हूं, अच्छा होता कि बैग तुम उधर खोलती। मेरी आंखों में आंसू भर आए और बैग उठाकर कहा, ठीक है आपा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं छोटी आपा के घर चली जाती हूं। बोली, हाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, मैं खुद 1-2 दिन बाद में वहां आकर मिल लूंगी। 2 गलियां छोड़कर छोटी आपा का घर था। रात के 8 बज रहे थे। उनको भी मेरी बर्बादी का इल्म था। ये 2 गलियां तय करते हुए मेरी आंखों से ही नहीं बल्कि दिल से भी ज़ारो कतार आंसू गिर रहे थे। मुझे अम्मा और अबू शिद्दत से याद आ रहे थे। अम्मा अबू के बाद इस वक्त मेरे जहन में किसी और का ख्याल उभरा तो मैं हैरत ज़दा रह गई। वो ख्याल असलम नहीं बल्कि रफ़ीक का था। शायद इंसान को सबसे मुखलिस इंसानों की कदर सिर्फ तभी होती है जब वो अपनी जिंदगी में तकलीफ की गहराइयों में और पाताल में गिर चुके होते हैं। मैं छोटी आपा के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। दस्तक दी, उनकी मुलाजिमा ने दरवाजा खोला और अंदर जाकर इत्तला दी। छोटी आपा ने कहा, उसे ड्राइंग रूम में बिठा दो, लेकिन वो खुद फौरन ना आई। मुलाजिमा गिलास लेकर आ गई। अब मैं एक सवाली की तरह वहां बैठी थी और छोटी आपा सामने नहीं आ रही थी।
आधे घंटे बाद आईं और पूछा तुम तो बड़ी बहन की तरफ गई थी। उन्होंने मुझे फोन पर बता दिया था। तुम्हारे ठहरने का इंतजाम तो उन्हीं के पास होगा। मैं सफर और गम से निढाल थी। सोचा कि ये बिस्तर लगा दें और मैं इस पर गिर कर सो जाऊं। उन्होंने सोने या आराम करने का इशारा भी ना दिया। इसी तरह मुंतजर रही कि मैं अभी बैग उठाकर फिर से बड़ी बहन के घर की राह लूंगी। ज़मीर मलामत करने लगा कि कैसे कहूं यहीं रहने आई हूं और बताओ कि कहां सुना है मुझे। लेकिन मैं चुपचाप खामोशी से बैठी रही। जब छोटी आपा ने देखा कि ये तो टस से मिस नहीं हो रही और कोई जवाब भी नहीं दे रही तो उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद मुलाजमा के हाथ खाना भिजवा दिया और मुलाजमा ने ही अपने साथ वाला खाली कमरा दिखाया कि उधर आपका बिस्तर लगा देती हूं। आपकी आपा तो अपने बेडरूम में जाकर सो चुकी है। रात भर रोते हुए गुजर गई। सुबह उठते ही रफीक को फोन मिलाया और कहा कि यहां आपा के घर गुजरावाला में हूं, मुझे आकर ले जाइए। वो तकरीबन 2-3 घंटे बाद आ गए और आते ही बोले मेरी प्यारी शरीक हयात, तुम्हारे बगैर मेरा घर सूना हो गया था। जब से तुम रूठ कर गई हो हम सब घर वालों को तुम्हारे बगैर एक पिल भी अच्छा नहीं लगा। तुम हमारे घर का हिस्सा हो, आओ मेरे साथ घर चलो, घर तुम्हारा मुंतजर है। मैंने जाते हुए छोटी आपा को खुदा हाफिज भी नहीं कहा। मुझे अब उनके पास लूट कर आना ही कब था। अपने शौहर के घर बल्कि अपने घर में कदम रखते ही पहली बार मेरे दिल को इतना सुकून मिला कि लगता था किसी गहरे घड़े में गिरने से बच गई हूं। फौरन सांस दौड़ी आई। मैंने भी उन्हें पहली दफा मोहब्बत से गिले लगाया। सब ने जल्दी से खाना तैयार किया और सब ने खुशी खुशी मिलकर खाना खाया। घर का हर शख्स यूं खुशी का इजहार कर रहा था जैसे उनके खानदान का कोई गुमशुदा फर्द अचानक मिल गया हो। आज मुझे एहसास हुआ था कि अपना घर क्या होता है। शौहर का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी मोहब्बत की आशय है, और शौहर से जो समाज और रिश्तेदारों में औरत को इज्जत भरा मकाम मिलता है वो कितना अनमोल है। आज मैं अपनी अम्मा की भी शुक्रगुजार थी। उनकी पारकी नज़र ने मेरे लिए एक बेहतरीन हीरा रफ़ीक की सूरत में ढूंढा था। ये शायद उन्हीं की दुआएं थीं जिसकी वजह से मैं गलत जगह पर गिरने से बच गई और आज अपने आप को खुशकिस्मत तरीन औरतों में शुमार करती हूँ। जल्द ही आयशा के जरिए मुझे मालूम हो गया कि असलम ने अपनी पसंद और मर्जी से एक लड़की से शादी कर ली है। वो महज धोखा दे रहा था और मैं उसके झूठे वादों पर बर्बाद हुए जा रही थी। शुक्र है कि बुरे वक्त की ठोकर लगने से मुझे बरवक्त अक्ल आ गई और मैं मजीद बर्बाद होने से बच गई, वरना मेरा मकाम हजारों बेवकूफ लड़कियों की तरह जमाने की ठोकरों में ही होता। नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।